श्वेता भी आगे हैं। हाँ जी मैम सर। एक एक दो मिनट, यानी कि 3:05 पे हम कोशिश करेंगे आरंभ करने का। That's fine, sir. हाँ, क्योंकि अभी I can एक दो wait. बच्चे अगर और आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Yeah, that's fine. No problem. I can आ भी wait. रहे No हैं, problem. हाँ जी, हाँ जी, अब आ रहे हैं बच्चे थोड़ी जल्दी। हाँ जी। असाइनमेंट से रिलेटेड या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी आप लोग की क्वेरी होगी, जब ये कक्षा Yes, खत्म हो जाएगी उसके बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे मैं हर बार ये विषय रखता हूँ कि कोई भी पर्सन क्षेत्रीय केंद्र से संबंधित अगर आपके पास आपका है तो आप मेरे को बताइए, हम यथासंभव आपकी सहायता करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है मैम, बच्चे थोड़े okay. से संख्या थोड़ी सी बेहतर है, तो अब मुझे लगता है कि अब आरंभ कर लेंगे। बीच बीच हाँ में जी मैम सर। अगर आपको ज्यादा शोर सुनाई दे तो बच्चों से बीच में आग्रह कर सकते हैं कि आप अपने माइक को म्यूट कर लें। Yeah, that's fine. हाँ, सभी बच्चों से विशेष रूप से आग्रह रहेगा, अपने माइक म्यूट रखेंगे। रोहित, आपका माइक अभी ऑन है तो आप बंद कर सकते हैं। और जी सर। एक, हाँ एक मैं आप लोग की अब जितने भी, चलो एक या दो बच्चे अगर और आ जाते हैं तो एक स्नैप ले लेंगे, उसके बाद फिर से आरंभ करते हैं। ठीक है सर। अब ये भी जरूरी चीजें हैं आपके लिए। बिल्कुल सर। To maintain the record, I can understand. प्लीज एक बार सभी अपने वीडियोज ऑन कर लेंगे। सभी विद्यार्थी अपने वीडियो ऑन कर लें। सुरभि, दीक्षा, प्लीज सभी अपने एक बार वीडियो ऑन कर लें। थैंक यू, अब आप ऑफ कर सकते हैं। मैम प्लीज स्टार्ट। Yeah. Okay. Uh, this is Dr. Gurjeet Kaur Bhatti, is HOD MLT, Chandigarh University, is going to take your DNHE course. And now I'm going to start with the first unit and with the first topic. And for the first time, I'll little bit I can give you the explanation of about the DNHE course. This is diploma of the first 1 year, which you already know. You have already taken the admissions, and there are two parts. One is the classroom theory, and next you have to submit the assignments, which almost carries the 30% of your marks. Otherwise you have to appear in the exams. And now I can start with one of first of the topic, which is from your actually from the coursework, which is provided with the your the IGNO material. And if you can open that book, you'll find the first topic, which is the food, nutrition, and about the health. And in the beginning, I really wanted to explain about the role of the crucial role of the food. And first, we'll discuss the food, and which we really wanted to explain that the food has a very, very, very crucial role in life to maintain what the sustainability of the life to keep you healthy actually. And it's actually is you can give the name as a the life giver, and which provide by the balanced diet. And everybody knows that you need the food which is to be balanced. And the balanced food means you have to get everything in balance, like the carbohydrates, uh, lipids, proteins, water. Okay, but why? But what? In what proportion? And the food, anything which, and the definition of the food is which that anything which nourishes the body. And the nourishment and the nutrition to maintain the health by the food is very much necessary. And the food can be in the form of the solids, semi solids, and in the liquid form. Anyone can, in any form you can have the food which can nourish and which can maintain your health. And food can be of a complex mixture of the nutrients and the non-nutrients. And this in this I really wanted to explain that the nutrients and the non-nutrient part is whatever you eat,
the whole food is not contain whole of the nutrients. It also contains the non-nutrient parts, which you can say that this is a filler also. Like you take the medicines, you take the medicine, and if you take one of the tablet, that whole tablet is not a medicine, that contains a little bit of the medicine, which other part of the medicine of part of the tablet is a filler part. Likewise is with the food only. All the food you eat in your daily life, that whole food doesn't give you the carbohydrates or the lipids or the proteins. There are little bit part of the, like you eat a whole of the banana, that doesn't give you the whole of the carbohydrates, that has the filler portion also, and the other things also. Okay, that banana or the food, you can take the example of the food only, the whole food you eat so many things, like you eat dal, you eat chapati, you eat sabji, and then you take then by that you take so many things, minerals, carbohydrates, lipids, and proteins, but you don't know in how much condition, in how much amount you take those. Okay, but that's a different part, that when you start calculating that how much food, how much how much carbohydrates, how much proteins, or how much lipids you take in that particular kind of a food. But now we just discuss in general the food only. So do you just will go on that topic only, we'll go on that topic in the when we move further with this nutrition topic. This is just an introductory part, so I'm just explaining about the food and nutrition and in relation to the health. So when we take the food, the whole food is doesn't contain, even it's in a solid or the semi-solid or the liquid form, it doesn't contain much of the nutrients rather than the non-nutrient parts also. So now we'll discuss about the functions of the food. As far as the first chapter of this unit contains, we'll discuss about the functions of the food. So the food has various functions. So first of all, the major is the physiological role, the others are the social, psychological roles also the food which perform. But the physiological roles are most important roles of the food. Like number one, which is the food gives the energy. Okay, so it's energy giving. Number second, it's a bodybuilding. Number third, it's a protector. And number four, I'm just explaining the functions of the food, and one by one I'll explain it, okay, in detail further. I suppose all of you have a nutrition background. I don't know actually. So I'm giving a little bit more description, or the one, or the little bit also. I really want to explain for the persons who are from the medical background, or who knows little bit about the food and the biochemistry of the food. But to those persons also who are from the non-medical backgrounds. Okay, and so it's a energy giving, bodybuilding, it's protective, it's a regulator too, it's a maintenance and for the brain functioning, endocrine system regulators, and the growth of the physical and the mental state also. Like energy giving, first one is the energy giving. We all know that we have to work, the body has to work. When you have to get up, you need the energy. Like even if you even sometimes if you find that even you have skipped the meal, I mean you have taken the breakfast and you have skipped the lunch because of any reason, then after, and you take usually lunch at 1 to 2. Okay, when it reaches the 4 o'clock, and then you start feeling little bit low, you start feeling to have the food, you start feeling low in the energy levels, and you don't feel like working, because this is just because you have to have the lunch and you didn't have. Okay, when you didn't have your lunch and you start feeling low, and the usual timing you need energy, because you daily provide energy at usual timing, 1 to 2, like the breakfast and after the lunch, and then the, we have already fixed the 3 times of the food system in India, and most of the time we usually have the 3 time system. And when you don't have the food at that particular time, and then your body starts craving for that, your body actually, you have already made the system to feed your body at some regular intervals. So the body actually
crave for that energy, because that needs that body is dependent upon that energy because of that particular system which you have already made to provide the body energy in the form of the food. Okay. And then that when you don't take the food at that particular time, the body feels low, and then it starts craving for the food of that particular kind of. Okay. Then what now I'll suggest you what you can do if you have skipped because of any of the reason, like when you were traveling and you don't have the time or the food was not available. And then what you do, you should have some uh, instant sources of the energy. And now you have to see that what kind of instant source of energy. And everybody, you might have known, might have read somewhere that the carbohydrates, they are the good source of instant energy. Okay. And then, and I suggest that if you skip some meal and your body is feeling low because of non-provision of the food, or because of any reason you skip the meal, then you can have the carbohydrates as an instant source of energy, and then you'll feel like rejuvenating after some time, after some time, in a few moments or something. Okay. And then the role of the food is of bodybuilding. Obviously, when the baby has born, it grows, and in the infancy years, in the infancy days, we give the food to much extent. Like we feed the kids like with milk and the proteins and the carbohydrates and the lipids, and we force the kid, we compel, and we always compel the students and eat, and then bade hona hai, and then okay. So this is the how the food functions actually. And for the bodybuilding, like we grow when we have food, and uh, we usually know about the जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि बड़े होना है, हमारी मदर्स हैं, बड़े बच्चे बड़े होना है, दूध पियो एंड खाना खाओ, और हम घी तेल वाली चीजें बिकॉज ऑफ द इंडियन सिनारियो हम उनको बहुत देते हैं. सो हम कहते हैं बड़े होना है, बड़े होना है. दिस इज एक्चुअली द इंडियन सिनारियो. और वो बिल्कुल साइकोलॉजिकल, एक्चुअली वो मदर्स का वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट वो देती हैं बच्चों को कि आपको खाना खाओगे तो बड़े होगे. और एक्चुअली दिस इज द साइकोलॉजिकल फैक्ट विच इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द फूड. एंड होता है कि अगर आपको हेल्दी फूड है, फिर वो दूध देंगी, दही देंगी, घी तेल देंगी, बिकॉज व्हाट, because that also that does contains the lipids, and that contains proteins, and that contains दूध proteinaceous है. ओके. दही खाना है तो मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, एंड पनीर और वो साग पालक एंड ऑल आयरन रिच देती हैं, घी तेल देती हैं ताकि लिपिड्स हैं, ताकि वो ग्रोथ हो, बोन्स भी बढ़े, उसके साथ वो पतला ना रह जाए. बिकॉज वो हमें फिर पता चलता है जैसे मेल न्यूट्रिशन है, अगर नहीं फूड खाएंगे ग्रोथ स्टंटेड रह जाएगी, मेंटल ग्रोथ भी नहीं होगी, और एंड वो मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा. और ये सारी डिजीजेस जब मेल न्यूट्रिशन शुरू होता है तो उसके बाद विल स्टार्ट हैविंग सो मेनी डिजीजेस एसोसिएटेड विद द मेल न्यूट्रिशन. So the starting with happens with the malnutrition of the food when we don't have the food. Like अगर हम बच्चों को पहले जैसे आप इंडियन सिनेरियो है, हम कहते हैं कि खाया पिया लगेगा, बचपन में खाते हैं तो वो लगेगा, बड़े होके लगेगा. दिस इज द गुड फैक्ट. एक्चुअली दिस इज एक्चुअली रियलिटी. अगर हम छोटे होते से किसी को, आई मीन लाइक आप किसी प्लांट को अगर फीड नहीं देते हैं, खाद नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, तो उसकी ग्रोथ स्टंटेड है, वैसी ही फ्लावरिंग होगी और वैसे ही उसके फ्रूट का होगा, और फ्रूट की अमाउंट और क्वालिटी भी वैसी ही होगी, एंड देन उसकी ग्रोथ भी वैसी रह जाएगी. सिमिलर विद द ह्यूमन बींग्स. एक्चुअली ह्यूमन बींग्स को इफ ग्रोथ करनी है, मेंटल एंड फिजिकल दो ही तरह की ग्रोथ है. ओके. अगर इफ यू कंसिडर विद द बॉडी ओनली, ठीक है, वो दो तरह की ग्रोथ होने की वजह से, और फिजिकल एंड मेंटल दोनों का. अब मैं बताती हूँ आपको फिजिकल ग्रोथ में. अब हमने क्या है, हमारा एक तो एनर्जी बॉडी बिल्डिंग आ गया, और दूसरा बॉडी बिल्डिंग अगर हो रही है तो आसपास वियर टियर के भी तो बहुत सारे हैं, जैसे लाइक सीजनल चेंजेस हैं, वायरस फीवर आ गया, लाइक आजकल कोविड आ गया, तो फिर उसको बचाना भी है बॉडी को. दैट आल्सो एसोसिएटेड विद द, आपने देखा होगा कि बड़ी तरह के फूड्स आजकल अवेलेबल हैं, लाइक
कोविड से बचना है, देन यू हैव टू हैव द इम्यूनिटी बूस्टर्स. व्हाट इज इम्यूनिटी बूस्टर? लाइक आपको अपनी इम्यून सिस्टम विच इज developed in your body, which protects from the entirely from the क्या कह सकते हो आप, आपको आज को सिर्फ कोविड की बात नहीं है, और भी बहुत सारी की डिजीजेस होती हैं, जैसे सिंपल वायरल फीवर आता है, या फिर सिंपल वियर टियर होती है, फिर सिंपल सीजनल चेंजेस होती हैं, सीजनल एलर्जीज होती हैं. ठीक है, अब बड़ी ज्यादा बातें करेंगे तो वो ऑटोइम्यून डिजीजेस और तरह की डिजीजेस आती हैं, उससे भी फूड को. सो वी नीड इम्यूनिटी बूस्टर्स, दो वो स्पेशलाइज्ड फूड की कैटेगरीज में आते हैं. सो हियर I'll just use the word specialized food और इम्यूनिटी बूस्टर्स, बिकॉज दिस, अगर हम इस पे बात करना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा. सो वी डोंट वांट टू टॉक टू हियर, जस्ट फूड पे आप रहिए, जिसमें बड़ी तरह के फूड्स हैं, जो है फूड प्रोटेक्टर फूड्स हैं, और जो बॉडी की इंटरनल सिस्टम, जो हम इम्यूनिटी की बात करें, एक तो इम्यूनिटी बूस्टर्स हम ले लेंगे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जो प्रोटेक्टर होंगे उस तरह के फूड्स. ओके, एंड दूसरा उसको हम मेंटेन भी तो करना है ना, बॉडी को मेंटेनेंस है कि प्रोटेक्ट तो हो गया, और उसकी रेगुलेशंस ऑफ द बॉडी सिस्टम्स. लाइक हमारी बॉडी में अगर हम फूड की बात करें तो 3 तरह के फूड हम मेन है. प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए. ठीक है, एंड वाटर को हम बाद में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का हमने सीधा सीधा बता दिया कि जब आपको एनर्जी, आप लो फील कर रहे हैं, और अगर आपने फूड नहीं लिया है तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और अदरवाइज भी आपको एक बैलेंस्ड फूड ही लेना होता है, जिसमें थोड़े से लिपिड्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड थोड़े से प्रोटीन्स आप हमेशा लीजिए. ठीक है, तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपको प्रोटीन्स बहुत ज्यादा लेने होते हैं, लिपिड्स बहुत ज्यादा लेने होते हैं. प्रोटीन्स इसलिए कि बॉडी बिल्डिंग है वो. ठीक है, प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डर्स, एंड प्रोटीन्स दे कम इनटू 2 कैटेगरीज. एक तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो गए, एक फंक्शनल प्रोटीन्स आ गए. यहाँ मैं ये रेगुलेशन से रिलेटेड डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, प्रोटीन्स आई एम डिस्कसिंग बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन पॉइंट फूड का अलोंग विद किसके साथ आता है, वो प्रोटीन फूड के साथ. बिकॉज फूड हम एक नेचुरल ले लिया, उसका एक कंटेंट है प्रोटीन, जिसके साथ में एक रेगुलेशन, जैसे एनर्जी गिविंग होगी, बॉडी बिल्डिंग हो गई. ठीक है, उसके बाद हम एक रेगुलेशन में क्या है, बॉडी बिल्डिंग में तो मैंने कह दिया कि वी शुड टेक द प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स तो बॉडी बिल्डिंग में छोटे होते से बड़े होते तक, वियर टियर को भी, और लेकिन उसमें क्या है कि एक सिंपल बॉडी बिल्डिंग तो प्रोटीन्स नहीं कर सकते. लेकिन अगर स्ट्रक्चरल फंक्शंस आ गया, ओके, तो स्ट्रक्चरल फंक्शंस में क्या होगा कि स्ट्रक्चरल को मेंटेन करना है तो वी हैव एंजाइम्स. बॉडी है, I mean, जब body if you take the food from the mouth and that goes into the intestine, and then you know that the digestion will happen. What will happen there? अब अपने आप तो digest होगा नहीं, so enzymes will work. The enzymes are also proteinaceous in nature. So enzymes will work on the proteinaceous part of the food to digest, which will again absorbed, and it will be transported to the other part of the body. So that means that will be the body building, and for the regulation, and again for the protection of the body. Okay, and then brain functioning is also, because then you'll have the food like balanced food, carbohydrates in proteins, and the lipids and all, everything when you ingest, and that get digested, and then it is transported through most of the, I mean, food is transported through the blood to the different organs of the body, and then it goes to the brain. Okay, and uh, goes to the brain, and then the brain functioning will brain actually functions well in when you have the good food. Actually everybody knows that the sound health and the brain जो है वो एक्चुअली, अगर ब्रेन की फंक्शनिंग ठीक चाहिए तो बॉडी की हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक चाहिए. बॉडी की हेल्थ कहाँ से आएगी? इफ विल हैव द गुड फूड, इफ विल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम आउटर एनवायरमेंटल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द आउटर एनवायरमेंट. ओके, आप खाना अच्छा खा रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स खा रहे हैं, आपका बॉडी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, बॉडी को प्रोटेक्ट किया हुआ है, and that absorbed food that goes to the brain, and then the brain functions. Okay, sound mind resides in always sound health. ठीक है, good health होगी तो ये. और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा होता है? जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे हार्मोन्स हैं, दे आर आल्सो दी
I mean they are required in very little amount, like digestion भी होनी है, या brain system है, thyroid system है, कोई भी system है, though we need enzymes, and enzymes are proteins in nature, so we have to take the protein in the food, and some of the vitamins and the minerals, they also play the role of the enzymes, because some minerals and some vitamins, they act as a hormones, and some hormones, some of the hormones, they are some of the minerals, they are part of the enzyme system. Prosthetic group होता है, ओके, और एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है जो एंजाइम्स का पार्ट होता है. सो वी नीड इन रेगुलेशन प्रोटीन्स एंड द मिनरल्स. यहाँ मैं आपको थोड़ा ना ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर this chapter. So we'll go in detail into every of the topic. So keep in mind that healthy food contains healthy food and nutrition की definition, its relation with the health also, and food की definition, food के functions, ठीक है. फूड के मेन फंक्शंस में हमने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस डिस्कस कर लिए, एंड देन सोशल एंड द साइकोलॉजिकल फंक्शंस वी नीड टू डिस्कस इट, ओके. एंड द फूड के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उसमें आ गया एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, एंड ब्रेन फंक्शनिंग, एंड एंडोक्राइन रेगुलेटर्स, ओके. एंडोक्राइन में मैंने एंजाइम डिस्कस किए हैं, जिससे हमारे एंजाइम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, एंड उसका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है व्हिच इज अ मेटालिक पार्ट और द मिनरल, ओके. एंड देन ग्रोथ, फिजिकल एंड मेंटल, ये भी मैंने बता दिया कि साउंड हेल्थ में ही जो साउंड है, साउंड हेल्थ होगी, हेल्दी पर्सन होगा, ओनली देन द जो आपका माइंड है वो भी हेल्दी ही रहेगा. अच्छा, अब आपकी बुक में ना एक बिल्कुल एंड में जाके एक पार्ट है जो मैं अभी डिस्कस करती हूँ आपसे, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियन सिनेरियो. हम फूड को बहुत तरह का कहते हैं, 3 तरह के फूड हैं आपके. सबसे पहले आपका एक बताया हुआ है राजसिक, तामसिक एंड सात्विक. विल डिस्कस द सात्विक फूड. सात्विक फूड कौन से होते हैं? जो हम हेल्दी फूड्स, बिल्कुल ऑयली ना हो और मसालेदार ना हो, उनको हम सात्विक, लाइक दूध, कर्ड, ये सब आते हैं हमारे सात्विक फूड में, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ, जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते. अगर आपको सिंपल इस लैंग्वेज में अगर आप देखना चाहते हैं तो सात्विक फूड, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ साइड इफेक्ट, दे जस्ट गिव यू एनर्जी, and they just provide you protection, they just provide you body building, they just regulate the functions of your body, and they just grow the body, okay. They are called the sattvic foods. And then नेक्स्ट आते हैं आपके राजसिक फूड्स. राजसिक फूड्स में आपको, जैसे एज द नेम इंडिकेट्स, actually these are mentioned in your chapter because of this IGNOU के जो syllabus में है, इसमें types of है. So you really need to study these kind of this type of food. So that I really wanted to make you understand that nothing should left from this book, so that आप आराम से अपनी हर चीज कवर कर पाएं, और जो एग्जाम्स आए तो इसी सिलेबस में से आएंगे. सो ओके. एंड देन हमने क्या पढ़ लिया? सात्विक. एंड देन वी आर स्टडीइंग द राजसिक फूड. राजसिक फूड में वो तब बहुत सारे थाली, बहुत सारे तरह तरह के फूड, और उसमें क्या होता है, राजसिक फूड में क्या होता है कि आप खा बहुत लेते हो, उसमें ऑयली भी होगा, घी तेल भी होगा, नमक भी ज्यादा होगा, मसाले भी ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ फूड्स बहुत होंगे, जो कि एक वक्त में जरूरत भी नहीं होती है हमें. लाइक हम सब्जी भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, फुल्का, चपाती, सैलेड, अचार, पापड़, इसके साथ और भी आप स्वीट डिशेस, स्टार्टिंग में जो स्टार्टर्स होते हैं वो भी हो गया. एंड देन ये सब चीजें अगर आप खा रहे हो, एंड देन उसके बाद वो राजसिक फूड होता है. उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, कि मिक्सिंग ऑफ द फूड हो जाती है. एक चीज है आपकी, अब सपोज मिक्सिंग और काउंटर बैलेंसिंग, और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका एक ना न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैं बताती हूँ, इससे होता क्या है, दिक्कत क्या आती है राजसिक फूड में. लाइक अगर आप पालक, आपको पता होगा शायद, पालक है, पालक पनीर है, पालक के साथ अगर आप पनीर ले रहे हैं, देन you know that palak or palak is rich in iron, and paneer mein kya calcium hai, and then if you are taking both at the same time, okay, this is I'm giving you just one example. If you're giving two kind of foods with the contraindicated hand, then
the iron will disturb the absorption of the calcium, and calcium will disturb the absorption of the iron. So both will get wasted. ना तो आयरन ही डाइजेस्ट होगा, ना कैल्शियम डाइजेस्ट होगा। और ऐसा ही होता है कैल्शियम का फास्फोरस के साथ, एक्सेस ऑफ द फास्फोरस हो जाएगा, या फिर फास्फोरस के साथ एट द सेम टाइम इफ यू टेक द कैल्शियम, वो फास्फोरस को नहीं अब्सॉर्ब होने देगा, और फास्फोरस है वो कैल्शियम को अब्सॉर्ब नहीं होने देता। मे बी अगर थोड़ा कम होता है तो, लेकिन व्हाट्स द यूज ऑफ दैट हैविंग दीज टू काइंड ऑफ फूड्स टुगेदर, अगर वो दोनों को एब्सॉर्ब ही नहीं होने देते हैं, और वो दोनों की वेस्टेज है, एब्सॉर्ब ही नहीं होने देते एट ऑल, या फिर कम होने देते हैं, ओके, देन दोनों का वेस्टेज ऑफ टाइम है। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं व्हेन वी टेक द राजसिक फूड लाइक मेनी काइंड ऑफ फूड्स टुगेदर, ओके। तो हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा राजसिक, बहुत अच्छा फूड खाया, हमें या व्हाटएवर जो भी जिनकी भी आती हैं, तो उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने कब कहाँ किस चीज में से ले लिया। वी जस्ट हैव इट टुगेदर, like we'll have, even if we go to the marriages, like we have rajasic food at the most of the functions, most of the time, like we'll have soups, and then we'll have coffee, then we'll have again soup, then we'll start having the starters, बीच में ही अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है देन वो भी ले लेते हैं, अगर वेजिटेरियन है वो भी ले लेते हैं, एंड देन विल स्टार्ट हैविंग द मेन फूड। उसमें भी जाके हम चने हैं, दाल है, सैलड है, पूरियां हैं, चने हैं, वो भी सब खाते हैं। मतलब यू जस्ट सी कि आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर कैसे कैसे पाइल अप करते जाते हैं। सो व्हाट वुड हैपन टू योर डाइजेशन? वो बॉडी का एक सिस्टम है, एक मशीनरी है जिसके पास एक चीज आनी है, एंड देन इट गोज टू सम, एक तरह का एंजाइम आएगा, दूसरी तरह का एंजाइम आएगा, तीसरी तरह का एंजाइम आएगा, लेकिन वो इतनी मिक्सिंग ऑफ फूड्स हैं, आपने इतने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स खा लिए, देन कॉम्प्लेक्स फूड्स खा लिए, नाउ इट हैज टू ब्रेक इनटू द सिंपलर फूड्स, एंड देन सिंपलर फूड में आने के बाद उसके वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फिर मैक्रो से फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, व्हाट विल हैपन टू योर, I mean, this kind of a Rajasic food that actually disturbs your digestive system. Okay, and then next I'll explain about the tamasic food. Tamasic, you everybody knows, we have the habits of having the these days of junk food. Okay, because of the COVID, we have already stopped having these. We have already started having the food at home, and we have actually learned that we can live without the junk food. Okay, and what about the Domino's these days? I don't know what about the KFC, Domino's, and other things all everywhere. And okay, and then this is called the tamasic food. Tamasic food, tamas se matlab, I don't know whether you have understood that, something which is related to the acid producing, and maximum of the person these days have the acidity problem. You might be agree with me, every second person, every small person, they have migraine. Migraine is related to the stomach. I mean, acid production in the stomach, and acid is also already produced in the stomach. HCl, concentrated HCl is already there to, and which is necessary to for the digestion. Okay, whatever we eat, the हमारे जो stomach है उसका अंदर का environment हमेशा acidic होता है, but that is necessary, but उसका एक limit है। नेचर ने एक लिमिट सेट की हुई है, जितना चाहिए उतना ही होगा, बट इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन आवर फूड। अगर हम तामसिक फूड खाते हैं, जंक फूड लेते हैं, दैट एवरी काइंड ऑफ अ जंक फूड, आई विल टेल यू, एवरी काइंड ऑफ अ जंक फूड। जंक फूड में क्या, जंक फूड का मतलब सिर्फ शेप से नहीं है। अगर आपने बर्गर खाया है, जैसे आप अब आटा ब्रेड खाएंगे, मैदा ब्रेड खाएंगे, ऑब्वियसली दैट विल प्रोड्यूस मोर ऑफ द एसिड्स, बट अगर आप आटा ब्रेड खाएंगे तब वो कम करेगी। बट फिर भी उसके अलावा अगर आप बूरे वाला या ज्वार का, या जो हमने आजकल शुरू कर दिया मल्टीग्रेन आटा, अगर उसका फुल्का खाएंगे, दैट वुड बी द बेस्ट टू हैव। ओके, वो आपके रिड्यूस करेगा एसिडिटी को। सो दीज फूड्स आर कॉल्ड द तामसिक फूड, एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड, यहाँ पे फिर से आ गया वो मेंटल हेल्थ। whenever you'll have the tamasic kind of food or the rajasic kind of a food, okay, then you have a good amount of a production of the acids in your stomach, which will actually disturb your mental status, because वो gas production and gastric problems आती हैं, that will push your heartbeat and heart towards, and then आपको घबराहट होनी शुरू होती है, and then also disturb the mental। देखो, एक सीधी सी बात है, गट माइक्रोबायोटा, ठीक है, गट फीलिंग जो आती है, that is also related, and gut is also a second brain।
wherever you want to. Even if you research on the internet, जो आपकी गट है, स्टमक का जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट इज अ गट. वो गट फीलिंग होती है जो एक आती है. पहले तो ब्रेन आपको एक हार्ट एक देता है, फिर गट फीलिंग भी होती है. बट अगर आप गट से लेके अगर आप चलो तो गट एक दूसरा ब्रेन होता है. तो अगर आपका गट डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो आपकी मेंटल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है. अगर आपका स्टमक अपसेट है, देन यू वोंट फंक्शन. अगर आप धीरे सीधा सीधा सोचो ना, आप फंक्शन नहीं कर सकते. आपकी बॉडी फंक्शन, आप एनर्जी में लो फील करोगे. थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आ गई है तो आप you'll feel डोंट फील लाइक वर्किंग. ठीक है, आपका मेंटल, आपका मन नहीं लग रहा होगा. एंड अगर आपका गट माइक्रोबायोटा भी और गट, ठीक है, माइक्रोबायोटा की बात मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज काफी सारे बीच में माइक्रोफ्लोरास होते हैं. माइक्रोफ्लोरा से मतलब वो एंजाइम्स एंड ऑल जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. दैट इज कॉल्ड अ माइक्रोफ्लोरा, नॉर्मल माइक्रोफोना एंड फ्लोरा ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. जब आपका तामसिक या राजसिक फूड खाएंगे, तामसिक तो पक्का ही पक्का होगा एसिड प्रोडक्शन. बट अगर आप राजसिक फूड भी खाते हैं, दैट विल आल्सो लीड टू द एसिड प्रोडक्शन. एंड कुछ ऐसे एसिड्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपके नॉर्मल जो फोना एंड फ्लोरा और माइक्रोबायोटा है गट का, उसको डिस्टर्ब करके आपकी डाइजेशन को इतना डिस्टर्ब कर देंगे कि आपकी एक चीज प्रोडक्शन जो प्रोटीन्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब होने थे, वो इतने कॉम्प्लेक्स के कॉम्प्लेक्स ही रह जाएंगे कि एब्जॉर्प्शन फॉर्म में नहीं आते हैं. एंड वो स्टमक में पड़े रहेंगे और आपकी डाइजेशन को दिक्कत आएगी. एंड डाइजेशन के बाद आपकी सारा सिस्टम एक्सक्रीशन में दिक्कत आएगी. दैट वोंट बी हैविंग द प्रॉपर excretion, so everything would be in there. Everything would not be in the stomach only, that would, something will go to the intestine, something will go to the big large intestine. But I mean, कहने का मतलब ये है कि सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा. सो एक तो आप कॉम्प्लेक्स फूड्स की बजाय सिंपलर फूड्स पे आइए. और दूसरा, घी, तेल और जो मैदा है, जैसे ज्यादा रिच है, वो उन चीजों को मत खाइए. ये कॉम्प्लेक्स फूड्स में आते हैं, मैदा एंड ऑल, ये सब तो बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश कीजिए. दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू in this DNHE, that it entirely DNHE में यही सिखाया जाता है कि types of food and functions of food in relation to the uh, what do you call, to the maintain the health, not the health, to maintain the health. अब हम ये नहीं ना करेंगे कि सिर्फ हमने ये ज्यूम कर लेना है डीएनएचई में आके, कल को हमने किसी को गाइड करना है कि वो हेल्दी पर्सन आ रहा है आपके पास, इवन इफ डजंट, इफ ही और शी इज हैविंग सम लिटिल बिट प्रॉब्लम लाइक डायबिटिक है, इवन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर डायबिटिक भी नहीं है, हाइपरटेंसिव भी नहीं है, देन ऑल्सो उसकी मेंटेन करने के लिए हेल्थ, समटाइम्स दे डोंट फील गुड. इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द फूड क्वालिटी दे टेक और द टाइमिंग ऑफ द फूड एंड द टाइप ऑफ द फूड एंड नंबर ऑफ टाइम्स द फूड दे टेक. सो हमें टाइप ऑफ फूड पे कंसिडर करना है and number of times and quantity of the food and complex and at a time कितनी तरह का फूड लेना है, mixing of the food भी अवॉइड करना है. like I have given you the examples of the calcium and phosphorus, calcium and the iron. okay, now these days the people they have started, पालक बनाते हैं तो पालक पनीर नहीं है, पालक में कॉर्न्स डालते हैं and they don't want to have the paneer at the same time. okay, some people they have started sorry. Now again we have come to the next portion, next function of the food, that is a social. And we know this is a quite a common topics, everybody knows, but I really want to teach so that we should complete the syllabus also. सोशल मीन्स सोशल गैदरिंग्स पे हम लोग फूड बनाते हैं. लाइक किसी का अगर बर्थडे है तो केक तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है. और अगर दशहरा है तो जलेबियां होती हैं, अगर कोई पार्ट है, रिलीजियस गैदरिंग थी तो प्रसाद बनेगा, पूरियां चने बनेंगे. तो दीज टाइप ऑफ ऑल्सो फंक्शंस ऑफ द फूड विच इज एसोसिएटेड ओके विद द सोशल गैदरिंग. लाइक अब साइकोलॉजिकल आ गया. साइकोलॉजिकल में क्या है कि आपका कुछ फूड है, लाइक जैसे मदर्स हैं, अब पता है कि मेरा बच्चा ये लाइक करता है तो वो उस टाइम उसको वही बना के देंगी. एंड देन किसी टाइम कुछ और बना के देंगी. अभी उसका ये मन नहीं है तो उस चीज को किसी और फॉर्म में बना दीजिए. अब आलू की सब्जी है, लाइक वो जीरे का तड़का लगा के बनानी है सिंपल, या किसी और तरह से है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द साइकोलॉजिकल. हर बंदे की फूड की एक अपनी पसंद है, ठीक है.
एंड उस पसंद के अकॉर्डिंगली, लाइक कोई थोड़ा सा नमक ज्यादा पसंद करता है, कोई थोड़ा सा मीठा ज्यादा पसंद करता है, एंड आई रियली वांटेड टू हैव द सिंपल फूड लाइक जिसमें बैलेंस्ड नमक हो. आई डोंट वांट टू, आई मीन सबके अपने टेस्ट बड है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द टेस्ट बट दिस इज also the psychological food. Like some people, they don't like the food when they don't when the food has less amount of the salt, they start pouring the salt on that food. Like when they'll have that doesn't suit to their taste buds, and then they sprinkle some of the little bit of the salt on that, and then they mix, and then they enjoy that food. That's called a psychological impact. Like, but otherwise इसका कोई harm नहीं है. But as if the person is having hypertension or sugar diseases, diabetes and all everything, so उसको avoid करना पड़ेगा मीठा, sugar, everybody knows, and the salt. That has to be, the person that has to avoid the salty and the sugar level of. Okay? These are kind of the sugar. They are important, but in the disease condition, the psychological system, psychological facts, associated food, they actually disturb the mental state of the person because he or she doesn't like the food. Actually, उनको फिर satiety वाली feeling ही नहीं आती. उनको लगता है कि just हम खा रहे हैं और just खा रहे हैं, ठीक है? And just filling के लिए. They don't feel good after having the food. I mean एक जो good feeling आनी चाहिए ना, if you enjoy the food, I mean ये चीज तो होनी ही चाहिए कि when you have the food, you should enjoy that food. But अगर आपके taste buds satisfy नहीं होते तो एक liking वाली feeling नहीं आती. This is only the psychological fact. Otherwise इसका वैसे कोई फूड से एसोसिएशन नहीं है, सोशल गैदरिंग वाले का भी नहीं है. मेनली जो हमने याद रखना है वो फूड के जो फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे जो फिजियोलॉजिकल फूड है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो फूड के, दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. ओके, नाउ अब क्या है, आगे है एक्टिविटीज नीड एनर्जी. अच्छा, अब क्या है फूड, हमने एक बात कर ली पहले कि एनर्जी गिविंग है. अब बॉडी की ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिसके लिए हमें है, बिकॉज एवरीबडी नोज, बट अगर एक्टिविटी तो बॉडी की तब भी होती है व्हेन वी आर स्लीपिंग, लाइक बीटिंग ऑफ द हार्ट and contraction of the intestine, or the extension and expansion and contraction of the intestine, because we are breathing. So when we inhale, the expansion, and when we exhale, then the contraction of the lungs is also there, and heart is always 24/7 heart is working, and then the heart beats. Okay, dap lap jo sound hoti hai, that also needs energy. So even if you are not doing a physical work, then also your body needs energy, some amount of energy. And basically अब क्या है, बेसिकली अब हमने सारा फूड डिस्कस कर लिया, बेसिकली फंक्शन कर लिया. नाउ वी आर अगेन शिफ्टिंग टुवर्ड्स द मेन energy giving nutrients. I have discussed already that the way of the lipids and proteins and the carbohydrate balanced food हमने discuss कर लिया. So basically जो energy giving foods होते हैं ना, they are the both kinds of. जो main जो है carbohydrates, which are called as the instant source of the energy. Next are lipids, which is commonly called as fats too. With वो उनको हम क्या कहते हैं, stored amount of energy. अगर आपके पास आप खाना नहीं खा रहे हैं, suppose आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, तो आपका एरोबिक जो सिस्टम है, लाइक एक आपने सुबह खाना खा लिया, दोपहर का लंच की एक आपके एक सेट टाइमिंग है, वो आपका टाइमिंग किसी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, स्किप हो गया फूड बिकॉज ऑफ एनी रीजन. सो आपका क्या होता है, फिर आपकी बॉडी थोड़ी देर आपको भूख लगती है, बट उसके बाद आपकी एक फीलिंग, जब आप उस टाइम पे नहीं लेते हो, देन होता क्या है कि आपका अगेन वो बाद में फिर से सेट हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाता है, वो भूख लगनी बंद हो जाती है, आप कहते हो भूख मर गई है, जो आम लैंग्वेज में यूज करते हैं. वो होता क्या है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, लिवर में ग्लाइकोजन सोर्सेज है, सबसे पहले वही होना शुरू हो जाता है, जो कि ग्लाइकोजन सोर्सेज जो भी हमारे लिवर में स्टोर्ड ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की डिफरेंट यूनिट्स हैं, जो वो ज्वाइन होके ग्लाइकोजन बनता है, फिर वो ब्रेक डाउन होके शुरू होके ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज हमारी बॉडी को आना शुरू हो जाता है, अगर हम फूड नहीं ले रहे हैं. अगर अब ग्लाइकोजन के रिसोर्सेज भी कम हो, देन व्हाट हैपेंस, देन विल गो टू द लिपिड्स, ठीक है, फिर लिपिड्स के रिसोर्सेज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में लिपिड्स के रिसोर्सेज बहुत होते हैं, एंड फिर वो उसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है स्टोर्ड लिपिड्स की, एंड देन
फिर उनसे फिर हमें कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज मिलके फिर देन हमारी बॉडी की नीड उस वक्त कंप्लीट हो जाती है। अगर हम ऑलरेडी फूड खाते हैं एंड वी डोंट हैव द फूड फॉर एनी पर्टिकुलर टाइम फॉर एनी गिवन रीजन, तो हमारे फिर वो बॉडी के फूड की नीड हो जाती है। सो दैट्स व्हाई जब हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो इसको मैं उसी से रिलेट करना चाहूंगी। व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम, कुछ दिन क्या होता है कि आप स्टार्ट करते हो एक्सरसाइजेस, आफ्टर फ्यू डेज ना पहले वीक में लोग कहना शुरू हो जाते हैं ओके ओके मैम आप पतले हो गए हो, या किसी को भी सर आप पतले हो गए हो थोड़े दिनों में, बिकॉज वो सबसे पहले तो एक वाटर लॉस होता है और आप कार्बोहाइड्रेट्स खाने बंद कर देते हो। लेकिन उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत जल्दी फर्क नहीं पड़ता आपका। बिकॉज क्यों? बिकॉज अब आपने एक तो शुगर खाना बंद कर दिया, पानी की इनटेक ज्यादा हो गई है, लेकिन क्या होता है कि आपके टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं लेकिन आपकी बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, जो कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो जल्दी जल्दी खर्च हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम डायबिटिक, इसको मैं एक चीज और से रिलेट करती हूँ, आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। डायबिटिक पर्सन में क्या होता है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स लेता है ना सुबह, अगर उसने थोड़ा मीठा खा लिया है तो उसको सैर करना या फिजिकल एक्सरसाइज या वॉक करना क्यों जरूरी समझा जाता है? बिकॉज उसका जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आ गया है, अगर वो अभी उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड अ डायबिटिक। so he has to work hard like physical exercise like walking or any other kind of exercise just to digest that. इसका मतलब ये होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स व्हाट यू टेक द कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म फूड इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, उसको डाइजेस्ट करना इजी है। इवन इफ यू गो फॉर द एक्सरसाइज, लिटिल बिट ऑफ द एग्रेसिव एक्सरसाइज, क्वाइट ब्रिस्क वॉकिंग के कर से करते हैं, तो आपके कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहते हैं। स्टोर्ड क्या रहता है? मेनली लिपिड्स। तो जो लिपिड्स आपके स्टोर्ड रहते हैं, उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करते हो, इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज स्टोर्ड थे वो तो ब्रेक हो गए, उसकी वजह से आपका थोड़ा सा रिड्यूस्ड बॉडी हेल्थ लगती है। बट उसके बाद अगर अगर आपका एक्सरसाइज करते रहते हो उसके बाद और ज्यादा, लेकिन फिर जल्दी जल्दी से क्यों रिड्यूस नहीं करते हैं? बिकॉज अब आपकी बात आती है लिपिड्स को रिड्यूस करने की, और लिपिड्स बहुत जल्दी रिड्यूस, यू कैन नॉट जस्ट रिड्यूस द लिपिड्स बिकॉज वो उसके लिए बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज चाहिए सो दैट कार्बोहाइड्रेट हट गए हैं, उसके बाद लिपिड्स को इन सीन में आना है, लिपिड्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आना है। तो वो एनर्जी जब वो प्रोवाइड करेंगे तो वो बहुत जल्दी ब्रेकअप नहीं होते हैं लिपिड्स, एक्चुअली वो डिपॉजिट स्टोर्ड अमाउंट होता है जो लिपिड्स का, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज करनी पड़ती है उस चीज को, उस डिपॉजिट को हिलाने के लिए। इसीलिए जब बहुत आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो तो लिपिड्स रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी। लिपिड्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो इंस्टेंट सोर्स। इसी तरह से उल्टा हो गया, अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर वी विल स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइजेस, अगर वो बल्कि खर्च भी हो जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन अगर इफ यू फील लो देन यू कैन हैव द ग्लूकोज, घोलो थोड़ा सा 2 चम्मच एंड देन यू फील रिजुविनेटेड बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स are the instant store of the energy. There are types of the carbohydrates like एल्डोज भी होते हैं, कीटोज भी होते हैं, वो एक अलग बात है। जैसे आजकल बहुत चलता है कि एल्डोजेस की बजाय आप कीटो डाइट्स लो। ठीक है, कीटो डाइट्स लोगे देन आपका कीटो डाइट लेने से आपकी मोटापा या फिर जो बॉडी है वो ग्रो नहीं करती है। जैसे कि मीठा खाने छोड़ने से आप पतले बहुत जल्दी हो जाते हो, तो वो कीटो डाइट पे शिफ्ट करने से आपकी बॉडी पे इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये एक अलग चीजें हैं, ये एक अलग टॉपिक है, बट मैं लिटिल बिट आई एम गिविंग द इंट्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द फर्स्ट टॉपिक so that you should come to know. When we'll move to the individual topics na, then you'll come to know, then we'll go into the detail and then I'll teach you in detail about these things कि ये कैसे होता है। अभी तक आपको टाइप्स ऑफ फूड्स में है, इंस्टेंट फूड सोर्स ऑफ फूड हो गया, लिपिड्स हो गया, ठीक है, एंड बोथ ऑफ दीज, सो बिकॉज एक इंस्टेंट सोर्स है और एक स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड सोर्स है, तो दोनों को हम क्या कहते हैं? बॉडी फ्यूल्स। बिकॉज बॉडी फ्यूल्स तो हमें चाहिए लाइक फायर है, एक वुड है, उसको आप जब आप फ्लेम करोगे तो फ्लेम की फॉर्म में दैट विल प्रोवाइड यू हीट एनर्जी एंड देन लाइट एनर्जी। इसी तरह से इन दोनों के साथ भी दीज आर आल्सो द बॉडी फ्यूल्स। जब ये बर्न होते हैं देन दे प्रोवाइड द हीट एनर्जी and to the body to maintain the temperature of the body and the light energy तो नहीं कह सकते, other kind of energies to work for to I mean the body, they made the body workable,
आई मीन बॉडी वर्क कर सके, बॉडी एनर्जी रिच रहे, लो फील ना करे, एनर्जी सोर्सेज लो फील ना करें, ब्रेन सिस्टम फंक्शनिंग ठीक रहे, हार्ट के फंक्शनिंग और इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग, लंग्स की फंक्शनिंग, जो बेसिक हमारे फंक्शंस बॉडी के हैं और जो फिजिकल वर्क्स हैं, दे आर आल्सो शुड बी मेंटेन्ड. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द बॉडी फ्यूल्स. एंड सबसे बड़ी बात है, ये दोनों हमारे अब किस में काम आते हैं? दूसरा बात, ग्रोथ में. अच्छा, अब ग्रोथ, अब एक तो बॉडी का हो गया कि हमने खाना कौन सा खाना है, सोर्सेज कौन से हो गए, रिपेयर है, बॉडी है, फंक्शंस है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, ठीक है. अब अदर टाइप ऑफ फंक्शंस है, बट व्हाट अबाउट द ग्रोथ? ग्रोथ किससे होती है? सो वहां पे हमारा रोल आता है प्रोटीन्स का, बिकॉज स्ट्रक्चरल बॉडी प्रोटीन्स हैं, ठीक है. एंड स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल, बोथ आर द रोल्स जो बॉडी में हमारी प्ले करते हैं, दे आर प्लेड बाय द प्रोटीन्स. जैसे सब में रिपेयर थोड़ी बहुत है, जैसे सेल्स एंड टिश्यूज, अब हम ग्रो करते हैं तो यू ऑल नो दैट जो प्रीवियस सेल्स होते हैं, अब जैसे एक एग्जांपल ले लो आप आरबीसी सेल्स का, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, हम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, बट मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ रेड ब्लड सेल्स का. सो रेड ब्लड सेल्स है, इनका एक अपना एक लाइफ स्पैन है 120 डेज का. दैट मीन्स कि वो 120 दिन के बाद जो एक रेड ब्लड सेल है, ठीक है, वो डाई कर जाएगी, मर जाएगी, एंड देन लेकिन मर जाएगी, इसका मतलब रेड ब्लड सेल का काउंट तो खत्म नहीं होगा, हीमोग्लोबिन हमारा मेंटेन्ड उतना ही रहता है. सो दैट मीन्स कि बॉडी हमेशा रिपेयर की सिचुएशन में, कंडीशन में रहती है. सो दैट जब आरबीसीज रिड्यूस हो रहे हैं, पुराने वाले जो डाई हो रहे हैं, एंड नए वाले उससे रिप्लेस होंगे, पुराने वाले डाई होते जा रहे हैं, नए वाले जलते जा रहे हैं. ऐसे तो अगर एक ही बार में सारे मर जाएंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन तो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना. तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी का जो रिपेयर सिस्टम है वो चलता ही रहता है. जो पुरानी सेल्स हैं वो डाई होती रहती है, बट वो कॉन्टिन्यूसली रिपेयर होती रहती है नई वाली सेल से. एवरी काइंड ऑफ अ सेल, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था आरबीसीज का, टू मेंटेन द हीमोग्लोबिन, ठीक है. तो इसी तरह से हर सारी चीजें हैं, लेकिन उसको बनाने में उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसका अंदर का कंटेंट है, एवरीबडी नोज दैट हीम इज अ प्रोटीन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, हीम इज एन आयरन, ठीक है, पोर्शन. सो हमें मिनरल्स भी चाहिए होंगे वहां, ठीक है, एंड ग्लोबिन प्रोटीन भी चाहिए होगा. सो हमारी बॉडी की वियर टियर को अगर हमने पूरा मेंटेन्ड रखना है, बॉडी को एक्टिव फॉर्म में रखना है, एनर्जेटिक एनर्जी लेवल हाई रखने हैं, और या मेंटेन्ड रखने हैं, हाई का मतलब नहीं, मेंटेन रखने हैं, देन वी हैव टू मेंटेन दी कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स. तो हमने बात कर ली, बट वी हैव टू मेंटेन द प्रोटीन इनटेक टू, so that the repair should also continue with the dying cells. So the dying cells should also be replaced by actually the equal number of the cells. कम नहीं होना, कम ना हो जाए, ठीक है ना, इक्वली, बिल्कुल 100%. सो दिस इज ऑल्सो द कॉन्टिन्यूस रिपेयर प्रोसेस जो है, दैट ऑल्सो नीड्स द प्रोटीन्स, that also needs the minerals, which is a continuous process, and also energy levels. I mean carbohydrates and lipids भी चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए, लेकिन प्रोसेस को करेगा कौन? इनकॉर्पोरेशन किसकी होगी? मिनरल्स की और प्रोटीन्स की. सो एवरीथिंग इज नीडेड फॉर द रिपेयर. एंड अगर नहीं होगी, अगर ये चीजें नहीं होंगी, प्रोटीन्स नहीं होंगे, मिनरल्स नहीं होंगे, एनर्जी लेवल लो होंगे, तो रिपेयर का मैकेनिज्म ठप हो जाएगा. एंड रिपेयर का मैकेनिज्म, अगर आप एग्जांपल लें, सिर्फ हम रेड ब्लड सेल की लें, तो हीमोग्लोबिन की जगह एक हीमोग्लोबिन के रेड ब्लड सेल्स डाई हो रहे हैं, नेक्स्ट वन तो आ ही नहीं रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? द हीमोग्लोबिन विल गो डाउन. This is also one of the example I'm discussing. The hemoglobin amount will go down, and then you'll start suffering with the anemia. And there would be a one kind of anemia. It can alter the other function of the disease. Anemia होने से आपको और चीजें भी. Hello, हाँ जी. Yes, you want Good to ask? afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes, ma'am. मैम हाँ आई जी. वांट टू मैम एक्चुअली क्या हुआ है कि वीडियो पॉज हो गई थी. विल यू प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द प्रोटीन? Okay. Proteins. Have you understood about the carbohydrate and lipids? Yes, ma'am. Okay. Otherwise ना you can give me your आप मेरा मुझे अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं. अब मैं डिफरेंट जो मटेरियल होता है ना, आई कैन गिव यू, ठीक है. प्रोटीन से मैं डिस्कस कर रही हूँ. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स का आई रियली वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस इज एनर्जी लेवल्स. एनर्जी लेवल दो तरह के हैं, ठीक है. एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, दैट्स अ इंस्टेंट सोर्स,
एंड लिपिड्स क्या होते हैं, दैट्स अ स्टोर्ड वंस, ठीक है। वही मैंने आपको फिजिकल एक्सरसाइज से बताया था कि अगर आप यस यस मैम आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, जस्ट वांट टू चेक कि जो ईमेल आईडी है वो आपको अभी इसी यहीं पे मैसेज करनी है। आप कर सकते हो बेटा, कर सकते हो एनीथिंग, सो दैट मेरे को ठीक है। ये है कि अगर मेरे को आपको कुछ और प्रोवाइड करना है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, यहाँ से भी, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू द इग्नो वाला ना, क्योंकि आप इग्नो का कर रहे हो तो आई डोंट वांट टू कि भी मिस ना हो जाए कुछ भी, ठीक है। हाँ जी। लेकिन तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्टिव मटेरियल है, लाइक प्रोटीन्स के फंक्शंस हैं, लिपिड्स के हैं, इफ आई रियली वांटेड टू कन्वे, है ना, थोड़ा सा नोट्स बना के ना मटेरियल, आई जी। कैन गिव इट टू यू, वो मैं आपको दे सकती हूँ। आप लिख दीजिए ठीक मैसेज है। में, आई विल नोट इट डाउन, ठीक है। ठीक है मैम, अभी मैसेज अच्छा, में मेंशन कर देते हाँ हैं। जी। थैंक तो यू। मैं सीक्वेंस वाइज चल रही थी कि एनर्जी लेवल्स और जो माइंड का है, पहले फूड के फंक्शंस एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन लिपिड। नाउ आई एम कमिंग टू द प्रोटीन लेवल। प्रोटीन्स का क्या है, आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ रिपेयर। रिपेयर के साथ हमने लिया, एक तो बॉडी बिल्डिंग तो हम बचपन से लेते ही हैं कि बॉडी चाहिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं। दो आई एम एसोसिएटिंग दिस फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स विद द रिपेयर। रिपेयर का मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया था आरबीसीज का। लाइक आरबीसीज, हर सेल हमारी बॉडी में क्या है कि उसका एक टाइम पीरियड है, ठीक है, उसका एक टाइम पीरियड है। जैसे आरबीसीज का टाइम पीरियड 120 डेज होता है, ठीक है। और आरबीसीज क्या है, हमारे रेड ब्लड सेल्स है, विच मेंटेन हमारा क्या मेंटेन करते हैं, वो हमारा हीमोग्लोबिन अमाउंट, जिससे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन अमाउंट जो हमारी रेस्पिरेशन के साथ है। आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जो हीमोग्लोबिन है वो एक सेल में रिसाइड करता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल का कलर ही किससे होता है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से। तो हीमोग्लोबिन किस चीज का बना हुआ है, आधा पोर्शन प्रोटीन का है और आधा पोर्शन क्या है, आयरन का। आयरन इज अ मिनरल, सो वी नीड मिनरल एंड प्रोटीन्स एट द सेम टाइम। बट अब वो क्या रिसाइड करते हैं, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन रिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन आरबीसीज का अपना कितना है लाइफ स्पैन, वो 120 डेज का ही है। अब जब 120 दिनों बाद एक सेल डाई कर जाएगी, फिर थोड़े दिनों बाद दूसरी सेल डाई कर जाएगी, तो इसका मतलब ये थोड़े कि सारी की सारी आरबीसीज डाउन हो जाएंगी और आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट डाउन चला जाएगा। अगर आप प्रोटीन्स, अगर आप मिनरल्स अलोंग विद द अनदर एनर्जी सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, इफ यू आर टेकिंग टाइमली, तो आपकी जो वियर टियर है सेल्स की है, ठीक है, वो नई सेल्स रिप्लेस होती रहेंगी, पुरानी सेल गई नई सेल आ गई, उसमें उतना ही अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होगा। बट हीमोग्लोबिन कहाँ से बनेगा, आपके मिनरल्स एंड प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए, तो आपका मेंटेन रहेगा। अब अगर आप प्रोटीन्स एंड मिनरल्स का अमाउंट, आपकी डाइट में कुछ भी नहीं होता, आप प्रोटीनेशियस डाइट खाते ही नहीं है, दूध नहीं पीते हैं और बहुत सारी चीजें जो प्रोटीन रिच होती हैं, यू आर नॉट टेकिंग, यू आर जस्ट टेकिंग दी कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स, इनसे बात पूरी नहीं बनेगी, एनर्जी लेवल उतना नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल लो चला जाएगा। हीमोग्लोबिन लेवल लो चला जाएगा तो आपको पता, आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, वो बाइंड करती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, फिर वो लंग्स में जाके सारी जगह अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करके एंड देन फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन के वो एक्सेल करती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इवन इफ यू डोंट टेक द मिनरल्स, इवन इफ यू डोंट टेक द प्रोटीन्स इन अ गुड अमाउंट, तो आपका हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बॉडी में उतना हीमोग्लोबिन का अमाउंट लो होना शुरू होगा, आपको रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। एक रेस्पिरेशन प्रॉब्लम आएंगी तो एक से, मतलब कहने का मतलब ये है, आई हैव टेकन वन एग्जांपल ऑफ द प्रोटीन्स सो दैट कि एक चीज वियर टियर रिपेयर नहीं हो पाएगी जो आरबीसीज की हुई है, उससे एक की बजाय एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया के बाद आपको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, फिर जॉन्डिस होता है, लिवर प्रॉब्लम, मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी प्रॉब्लम्स लिंक्स अप होनी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज जो डाइजेशन है उसमें जो आप एक चीज लेते हो उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, आपने देखा ग्लाइकोलाइसिस होता है जब आप वो खाते हो आप, इवन इफ यू टेक द कार्बोहाइड्रेट्स, उसका लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट, पायरुवेट से फिर एंटर करता है वो कार्बोक्सिलिक साइकिल में, टीसीए साइकिल में, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हो तो, ठीक है। उसके बाद फिर वो आगे 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 आगे, ये सारी चीजें एक साइकिल के बाद दूसरे, एक साइकिल का, डाइजेशन के एक साइकिल का जो एंड पॉइंट होता है वो दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिर वो नया साइकिल होता है, उसका एंड पॉइंट वो नेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इस तरह से हमारा डाइजेशन है और सारे सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम लिंक्ड है ब्रेन सिस्टम से, ब्रेन सिस्टम लिंक्ड है हार्ट सिस्टम से, हार्ट सिस्टम लिंक्ड है रेस्पिरेटरी सिस्टम से,
रेस्पिरेटरी, एंड देन फिर डाइजेशन के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सारा किडनी सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद हमारा मस्कुलर सिस्टम आता है, सो एवरीथिंग इज लिंक्ड। सो व्हेन वी टेक द फूड एंड करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड, तो बॉडी की फंक्शनिंग, एक्टिविटी, रिपेयर सब ठीक चलती है, एंड फंक्शनिंग ऑफ द brain also, and hormonal system also, with the help of the vitamins and the hormones, because many of the hormones, they work as a enzymes, and proteins also works as a enzyme. They are also stimulator. कोई secondary system में काम करता है, तो कोई primary system में काम करता है. It all entirely depends upon the food, and believe me, food is correct food की बात कर रही हूँ, food not food. Correct food is actually associated with your health. This was an introductory part, so I really wanted to make you understand how important food is. ठीक है, वो फिजियोलॉजिकल भी हो गया, डिजीज से बचाने के लिए भी हो गया, रिपेयर के लिए भी हो गया, मेंटल फंक्शनिंग के लिए भी हो गया, वैसे फिजिकल वर्किंग के लिए भी हो गया. इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग फिजिकली, इवन इफ यू आर लाइंग, इट इज नेसेसरी फॉर योर हार्ट बीट, इट इज नेसेसरी फॉर योर किडनी टू फंक्शन, इट इज नेसेसरी टू respiring, okay, it is functioning, it is required for the functioning of the lungs too. ठीक है, ये सब चीजों के बाद रिपेयर के लिए भी हो गया. और आपको सारे फंक्शंस हैं, मोटे मोटे फंक्शंस मैंने आई मीन ब्रीफ में बताए हैं आपको, ठीक है. ये सारे फाइटिंग इन्फेक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस, ये सब आएगा. अच्छा, अब दूसरी बात, अब नाउ विल कम टू द इम्पोर्टेंट फंक्शन, जो हमारे फूड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वाटर. Why we take water, and why we say that we should take the water in a good amount, because ये जब हम सब खाना खाते हैं, डाइजेशन में जाता है ना, तो आपको पता है कि कोई भी एक अगर केमिकल रिएक्शन भी अगर आप लोगे, तो उसमें क्या है कि अगर आपकी कोई डाइजेशन होती है, उसमें साइड प्रोडक्ट्स हमेशा बनते हैं. साइड प्रोडक्ट्स को हो या बाय प्रोडक्ट्स को हो, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन, समटाइम्स दे आर गुड, समटाइम्स दे आर बैड, समटाइम्स दे डिस्टर्ब द डाइजेशन, और समटाइम्स दे गो एज इट इज. ओके, सो अगर उसको हम अगर सिंपली अगर वो थोड़ी देर बॉडी में रिसाइड करते हैं, दे टेक द फॉर्म ऑफ द टॉक्सिन्स. एंड इफ वी टेक द वाटर, ये टॉक्सिन रिमूवल के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत क्लीन हो जाती है बॉडी, एंड टॉक्सिन रिमूवल में वाटर का बहुत ज्यादा पार्ट होता है. और दूसरा पार्ट मेनली क्या होता है इनका, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन. बिकॉज देखो, हर केमिकल रिएक्शन है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें किसी में हीट प्रोड्यूस होती है, मेटाबॉलिज्म, व्हेन यू हैव कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होती है, एंड देन द हीट प्रोडक्शन इज देयर. सो आपको क्या लगता है कि वो हीट प्रोडक्शन होगी तो बॉडी का टेम्परेचर नहीं रेज करेगा, और हमने हमेशा फीवर थोड़े ना हो जाना है, वी डोंट वांट टू हैव अ फीवर. ठीक है, तो अगर बॉडी का अगर आप मेंटेन करना है टेम्परेचर, तो यू शुड हैव द वाटर. ठीक है, मैं फीवर की बात ये नहीं कर रही हूँ, जैसे 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98 पॉइंट समथिंग जो भी फीवर का अमाउंट होता है, उससे अगर 99 पॉइंट्स में भी ऊपर जाता है, देन यू डोंट फील गुड. ठीक है ना, अगर हल्का सा भी 99 भी हो जाता है ना, देन यू डोंट फील गुड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. और वो टेम्परेचर कई बार आपको फटीग्ड हो जाता है, बट समटाइम्स फटीग्ड से नहीं होता, इट इज बिकॉज ऑफ द नॉट हैविंग द गुड अमाउंट ऑफ द फूड. अगर आप करेक्ट फूड नहीं लेते हो और कम्प्लेक्स फूड्स लेते हो, और उसकी ब्रेकडाउन में क्या है कि ब्रेकडाउन में वो जो कम्प्लेक्स फूड से सिंपलर में आने में उनकी एनर्जी बहुत होती है, और हीट जनरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है. ठीक है, हीट जनरेशन होती है तो आपकी बॉडी वैसे ही लो फील करना शुरू कर देती है. ठीक है, एंड देन उसमें अगर टॉक्सिन्स को रिमूव करना, व्हाटएवर जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं, उनका रिमूवल बहुत ज्यादा जरूरी है. देन यू शुड हैव द वाटर कंटेंट. ठीक है, और उसके बाद अगर आप वाटर कंटेंट है तो टॉक्सिन्स रिमूव होता है, और दूसरा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेनेंस में वाटर का बहुत ज्यादा रोल है. तीसरा ट्रांसपोर्ट में रोल है, बिकॉज वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ब्लड. तो जब आपको अगर आपका कंटेंट, बॉडी का कंटेंट और एब्जॉर्प्शन के बाद ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना टू डिफरेंट ऑर्गन्स, एब्जॉर्प्शन हो गई and then transported to the different organs like to blood, to heart and the body muscles and everywhere जो आपकी absorption energy है, then it has to. So the water plays a very good role in transporting through the blood to the different organs energy level जो हमारी डाइजेशन के बाद हमने प्रोड्यूस किए हैं, या फिर केमिकल्स की ब्रेकडाउन के बाद which has ingested, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए for the good functioning. Okay, and then vitamins, minerals along with the proteins, ये क्या करते हैं, contribute करते हैं substantially towards the protective and the regulatory functions.
हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स हो गए वो तो हो गए सोर्सेस, एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। लेकिन जो मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं और प्रोटीन्स के साथ ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस, ठीक है। अब वाटर के मेन फंक्शंस में क्या आ जाएगा, एक तो होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कौन सा, बॉडी टेम्परेचर का होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, ना बढ़ने देना ना कम होने देना। दूसरा, ठीक है, होम्योस्टेसिस का मतलब ये भी हो गया कि ये जो होम्योस्टेसिस में क्या है कि जो बाहर के जो टॉक्सिन्स या साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनका रिमूवल, अदरवाइज वो बॉडी में रहेंगे, जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है, वो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है एंड उसमें डिस्टरबेंस आनी शुरू हो जाएगी, तो आपका जो अ, हमेशा जो बॉडी का एक नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन होगा ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। टॉक्सिन्स मतलब फालतू की कोई चीजें आके बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं, तो वो सब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस तो नॉर्मल, अगर हमने उस होम्योस्टेसिस को कि जो हमने चीज खाई है उसका वही फंक्शन और उतना ही एनर्जी लेवल मिले, तो वो हमारे लिए जरूरी है। उसमें जो टॉक्सिन्स, बाय प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट्स आएंगे वो वाटर रिमूव कर देता है। तो इन दैट वे water helps to maintain the homeostasis of the water or body or the digestive system. नेक्स्ट, बॉडी टेम्परेचर को। और तीसरा क्या आता है बॉडी का फंक्शन, पीएच। आपको पता है पीएच, वाटर की पीएच होती है 7.2 एक्चुअली, जो न्यूट्रल पीएच होती है। अगर उससे नीचे 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 जाएगी तो फिर क्या हो जाता है, एसिडिक सिस्टम। जो मैंने आपको तामसिक फूड में डिस्कस किया था कि बॉडी में, हमारी बॉडी में एक्चुअली HCl प्रोड्यूस होता है जो कि एसिडिक है, बट वो उतने ही अमाउंट में हमारी बॉडी में होगा जितना कि डाइजेशन के लिए, विच इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन एक्चुअली। बट अगर हम तामसिक फूड खाएंगे उसका एक लेवल बढ़ जाएगा, तो देन विल स्टार्ट फीलिंग द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हमें होनी शुरू हो जाएंगी, एसिडिक प्रॉब्लम्स होंगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, विच विल डिस्टर्ब योर डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट सिस्टम एंड इवन टू द ब्रेन ऑल्सो, ठीक है। आपकी फीलिंग लो होनी शुरू हो जाएगी, यू डोंट फील लाइक वर्किंग, ठीक है, एनर्जी भी लो लगती है। इवन इवन हैविंग आफ्टर अ गुड अमाउंट ऑफ अ फूड देन ऑल्सो यू विल फील bad, not good, not I don't want to use the bad word, not good na, not feeling good. So pH balance is also necessary. So जो water है वो आपकी pH को भी बैलेंस करने में और या फिर अमाउंट को रिमूव करने में, या फिर ऐसे अमाउंट जो pH को डिस्टर्ब कर रहे हैं टॉक्सिन्स, उनके रिमूवल में हेल्प करेगा। सो इस तरह से जो वाटर है वो आपकी पीएच को करेगा। आजकल आपने सुना नहीं है, इवन कोविड का, अदरवाइज ऑल्सो, कि जो कैंसर सेल्स होती हैं दे ऑल्सो, दे डजंट रिसाइड इन एल्कलाइन, ठीक है। दुनिया की कोई भी डिजीज, कोई भी वायरस, कोई भी कैंसर सेल्स, कुछ भी एल्कलाइन मीडियम में रिसाइड नहीं करती। ये आप मेरा पॉइंट एक नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई भी, इवन कैंसर सेल्स तक भी एल्कलाइन मीडियम में रिसाइड नहीं करती हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी एसिडिक मीडियम हमेशा डिजीजेस करता है। डाइजेस्टिव डिजीज होगी, कैंसर सेल्स भी हो गई, एंड डायबिटीज होगी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होगी, इवन कोविड ऑल्सो, ठीक है। ये वायरस भी एसिडिक कंडीशन में ग्रो कर रहा है, एल्कलाइन में नहीं करता है, ठीक है। सो इट्स गुड टू हैव गुड फूड, और ऐसा फूड जो आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस या तो न्यूट्रल रखे या टुवर्ड्स द एल्कलाइन रखे, सो दैट इट शुड मेंटेन द नॉन डिजीज कंडीशंस, ओके। नॉन डिजीज कंडीशंस प्लस आपकी बॉडी का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, गैस्ट्रिक, उससे नहीं होगा। एल्कलाइन मीडियम में ये सब चीजें नहीं होंगी जो स्टमक को अपसेट करती है, ठीक है। एंड दूसरी बात, वाटर एक मीडियम बन जाता है जिसमें मोर कॉम्प्लेक्सेस सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि बीच में ब्रोक डाउन होके थोड़े से लेस कॉम्प्लेक्सेस में आएंगे, फिर स्मॉलर साइजेस में ब्रेक डाउन होगा, फिर और सिंपलर में होगा, ठीक है। And I have also already explained about the social roles and functions of the food, like हमारे सोशल फूड्स जो होते हैं, जो सोशल गैदरिंग में बनते हैं, वो सब राजसिक या तामसिक ही होंगे, और फेस्टिविटीज पे भी कोई स्पेशल बनते हैं वो भी हमेशा राजसिक या तामसिक ही होते हैं, ठीक है। रिलीजियस फूड्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाँ, अगर आप रिलीजियस फूड्स एक या दो आइटम्स बना के खाते हैं देन ऑल्सो इट्स गुड, बट हाँ, अगर आप वेराइटी ऑफ फूड एट ए टाइम कंज्यूम करते हैं देन इट्स एक्चुअली बैड। आई टेल यू, इट्स एक्चुअली बैड। इट डिस्टर्ब्स योर बॉडी टू विच वन, आई मीन आप इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हो, आप अपने स्टमक में पाइल अप, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फूड आप इतना बना देते हो कि वो इतनी डिस्टरबेंस होनी शुरू हो जाती है कि कौन सा फूड फर्स्ट यू हैव टू, ठीक है। सो आई थिंक
I have made you clear. ठीक है, मैं एंड में बस एक न्यूट्रिशन को थोड़ा सा सम अप करके I'll stop here the topic of the today, and tomorrow it's Sunday, I think I will continue on it on a Monday. Like आप अपना न्यूट्रिशन का पढ़ सकते हो कि उसके फंक्शंस क्या है, like ingestion से digestion, absorption and transport, and then utilization. I have already explained while explaining the different balanced food components like carbohydrates and all these terms I have touched. ठीक है, साइकोलॉजिकल पॉइंट, साइकोलॉजिकल जो फीलिंग्स होती हैं एसोसिएटेड एंड राजसी तामसिक एंड ऑल. ओके, एंड देन हमारी सबसे बड़ी एंड ऑफ द टॉपिक में आपको बताना चाहूंगी, ऐसे फूड खाओ जो हमारी बॉडी टॉलरेट कर सके और जिसको अडेप्ट कर सके. ठीक है, और हमारी जो हैबिट्स हैं वो एकदम से चेंज ना हो. लाइक कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते होते एकदम से वेजिटेरियन होते होते एकदम से नॉन वेज पे आ जाते हैं. देन एनिमल प्रोटीन्स उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा. शिफ्टिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट. लाइक थोड़ा 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 करोगे, देन ऑल्सो वी कैन हैव गुड healthy. ठीक है, so try to have a good food, try to have a balanced food, try to have a good amount of carbohydrates and the lipids. Fats थोड़े से कम हो, then it's okay because it's a stored food. अगर आपके पास डेली आपके पास ठीक ठाक फूड आपकी डेली एनर्जी लेवल के लिए आता जाता है तो इतना स्टोरेज ऑफ फूड तो आपके पास ऑलरेडी होता है. इवन इफ यू स्टॉप हैविंग द लिपिड्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, देन ऑल्सो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे. आपको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बन कर, बट स्टार्ट हैविंग द गुड प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये बहुत जरूरी है. good amount of water is very much necessary because this was the introductory chapter, so I really wanted to sensitize about the subject food, nutrition and associated with the health and feeling good with the psychological, social and all. Next time we'll start with the macro and the micronutrients and more. Now we won't discuss. And how can I say, if you type आप मेरा एक email ID नोट कर लीजिए, भट्टी जी के. My name is Dr. Gurjeet Kaur Bhatti. So भट्टी जी के BHATTIGK@yahoo.com. अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई मैसेजेस हैं जो आपने टाइप किए हैं, I really wanted to क्वेरी आपकी मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी. एंड आप मेरा कर लीजिए. एंड इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, आप मेल में मुझे कोई भी क्वेश्चन भेजिए. ठीक है जी. Thank you so much for today. We'll discuss. Thank you. Excuse me, ma'am. Yeah, Hanji. Ma'am, I was sending my email in the message box, but it was not going. Maybe something internet आप issue ऐड or कर something. लीजिए, या आप ऐड कर लीजिए. I'll type my email here only. Okay. Okay. Okay, ma'am. Bhatti GK @ anybody anything most welcome. Okay, Bhatti GK. ठीक है. In this, Okay. thank you so much. Thank you. Ma'am, there is also one query. Yeah. Ma'am, as I have submitted all the assignments of this subject, DNHE. Okay. DNHE. Okay. Ma'am, I'm getting something doubt in the project session. Okay. So आपने अपना DNHE 1, 2 and 3 की submit कर दी हैं, but you haven't appeared in the exams. Ma'am, it's in June. It's going to be held Okay, in your June. session. Okay, and then you are So left this with may the get project postponed. only. Project. Yes. Okay, Mahima is I'm asking left. for the spiritual health, जो मैंने आज नहीं किया, but I'll give you the notes and I'll touch the next time. Okay, I'll touch the next time. Okay. Okay, ma'am. पक्का. Okay. Thank you so much. Okay.